Please be taking your seats. Namaskar to everyone. And ladies and gentlemen, as we open IMC 2025, it is important to reflect on the transformative rollout of 5G anywhere in the world, and then being counted among the top 5 nations for its indigenous 4G technology. India today has a thriving which is driving opportunity, empowerment and inclusion, with connectivity as a major driver and enabler of our economic growth and nation building. And it is this very transformative vision, ladies and gentlemen, of Honorable Prime Minister Modi, which inspires the theme of IMC 2025 when we say innovate to transform, where India is not just the largest consumer of technology, but then becomes a hub of design innovation. That, ladies and gentlemen, is the new India which is shaping under the leadership of Honorable Prime Minister Sir. So, Jyotiraditya Scindia जी से कि एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भी ये विशेष स्मृति चिन्ह मेकिंग फॉर द वर्ल्ड की भावना से प्रेरित है. These are miniatures of indigenous technologies which are being presented to the Honorable Prime Minister Sir, जिसमें 4G RAN उपकरण, A6 और 5G एंटीना है, स्वदेशी तकनीकी उत्कृष्टता के. Shri Narendra Modi ji, Minister of State Chandrasekhar Pemasani ji, Information Technology and Telecom Ministers from various states across the country, industry leaders, policy makers, academicians, and ladies and gentlemen present here at IMC 2025. आज दिल के गहराइयों से इंडियन मोबाइल कांग्रेस के 90वीं संस्करण में हम देश के यशस्वी प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी का दिल के गहराइयों से यशोभूमि में स्वागत करते हैं. हमारा विश्वास है कि ये संस्करण इंडियन मोबाइल कांग्रेस का शुभ भी होगा, सफल भी होगा और इस बात का प्रमाण होगा कि भारत में दूरसंचार का क्षेत्र जिस प्रगति और विकास के पथ पे है, ये एक उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा की, भारत की विकास यात्रा की और विश्व में भारत का संपूर्ण सहयोग और संपूर्ण प्रमाण एक नक्षत्र के रूप में जो भारत उभर रहा है. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केवल एक दशक में भारत ने वो करके दिखाया है जो कई देशों को सदियों लगी. From being a technology taker and a technology follower, India today has become the digital flag bearer of the world. Our mobile data costs have fallen in the last 11 years by 98%. There was a time when a single minute of voice was a luxury, access was an aspiration. But today India is home to 20% of the world's mobile population, 1.2 billion subscribers. We have grown from 60 million internet broadband users in 2014 under Prime Minister's vision to 944 million broadband subscribers. Now let's take a moment and imagine if India were a digital nation, we would be the world's 3rd largest digital nation with 970 million internet subscribers. In IMC 2024,
Our Prime Minister has said, and I quote, Bharat's model of telecom is unique. भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया है। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब की बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। वे इन कहानियों का आंचल है जहां किसान अपने उपज की कीमतों को रियल टाइम तय करता है, बच्चे घर पर ही दुनिया पढ़ते हैं और गांव की उद्यमिता ग्लोबल मार्केट्स के साथ जुड़ती है। Today our telecom revolution rests on 4 Ds: democracy, demography, digital first and delivery. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूरसंचार क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण किया गया है। 1 GB of data in 2014 used to cost 287 rupees. Today that 1 GB of data costs only 9 rupees 11 cents, ladies and gentlemen. Demography. 99.9% of our districts today are connected by 5G. We have 365 million subscribers, and therefore this warrants that scale today is on India's side. Digital first. The trinity of JAM, DBT and UPI, India's DPI, has become a global benchmark for inclusion, for innovation, and it has turned services into rights and made governance instantaneous. Today, 20 countries across the globe are in active discussions to adopt India's DPI model. Delivery, from towers to antennas to fiber to BharatNet, the Prime Minister has set the tone. With discipline, we must ensure 100% saturation. And finally, each of these connect with each other. Affordable data, democracy, meets young and vibrant population, demography. Together, they demand a better platform. Digital first, and then these platforms matter when they reach every single home. Delivery. This is the virtuous circuit that our Prime Minister Narendra Modi ji has created for India and from India for the world, ladies and gentlemen. Our theme this year, Innovate to Transform, is not rhetorical. It is practiced indigenously. Over the next 3 days, we will have over 1.5 lakh participants from over 150 countries, 1,500 exhibitors with stalls, and over 1,600 cutting-edge use cases spanning 5G, 6G, AI, and electronics and IoT. We're also having this year, Prime Minister Sir, an unusual World Cup, Startup World Cup 2025, India edition, where 550 companies will vie with 300 venture capitalists and private equities for finance. 15 of these companies will be chosen and sent to the International World Cup competition in San Francisco, and I'm very confident with Prime Minister's guidance, India will come back victorious from that World Cup. This foresight. When we talked about 4G, he was emphatic in his decision that India must build her own 4G stack. And just last week, ladies and gentlemen, the Prime Minister has unveiled 1 lakh towers across the length and breadth of India, of India's domestic 4G stack, built in India, built for India, but built for the world. We have now entered the club of 4 nations. And India has planted its foot very firmly in this area of product innovation as well. This is India's journey, as Prime Minister has said many times. Vocal for local and local to global. And this revolution is the modern echo of our old पारंपरिक instinct. आज़ादी के पहले
जब चरखा आत्मनिर्भरता की प्रतीक होती थी, उस चरखे से स्वराज का सपना निकला था। और वैसे ही आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर का चिप वही भूमिका निभा रही है, जब सेल्फ रिलायंस से सेल्फ इनोवेशन में की तरफ भारत बदल रहा है। IMC 2025 is this latest chapter in Bharat's timeless story. From the charkha that wove freedom for India to the chip that powers transformation for India. भारत ने दिखाया है कि जब इनोवेशन स्वदेशी होता है तब उसका प्रभाव वैश्विक होता है। This talk of transformation will not be possible unless we talk about our Swadeshi innovation in our factories, in our workshops, where ideas become products. The Prime Minister resolved with the PLI scheme, Production Linked Incentive Scheme, today has resulted in close to 91,000 crore of new production, 18,000 crores of exports, and the creation of 30,000 new jobs. India today as a product nation, distinct from being a service nation, means creators besides consumers, patents besides pragmatism, and local design languages creating a new aesthetics of devices that will carry Indian crafts into the world of electronics. India's ambition, ladies and gentlemen, goes beyond 5G. The Bharat 6G Alliance aims for 10% of patents as standards will be set for 6G. SATCOM today is expanding horizons, taking connectivity from land to sea to space. And the SATCOM market today, across telecom and broadcasting, which is at close to $4 billion, will triple to almost $15 billion by 2033. At the heart of this whole revolution lies our people. It is India's going to be the world's largest digitally skilled force in the days to come. और ये digitally skilled force जब हमारी सुरक्षा और sovereignty का मजबूत ढांचे से सुरक्षित होगा, तो ये केवल टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति नहीं होगी, ये विकसित भारत की क्रांति होगी। स्किल्स हमें शक्ति देती है, सिक्योरिटी हमें विश्वास देता है, सॉवरेनिटी हमें आत्मनिर्भर बनाता है। और यही भारत की पद्धति होगी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जो विश्व पर निर्भर भारत था, आज वो आत्मनिर्भर भारत में परिवर्तित हो रहा है। और आत्मनिर्भर भारत से वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी कि विश्व भारत पर निर्भर है। Honorable Prime Minister has always said, and I quote, India is not just a participant in the digital revolution, India is leading it, unquote. With our Swadeshi 4G stack, with our fastest rollout of 5G, with our Digital Bharat Nidhi, connecting 38,000 villages for 100% saturation, with BharatNet, $17 billion program connecting 6 lakh villages, with 10% of 6G patents. And therefore today IMC 2025 will be that symphony where design, democracy, demography and delivery will play in harmony. I appeal to all of you today, design here, solve here, scale for everywhere. India innovates, ladies and gentlemen, and the world transforms. Let's welcome our Prime Minister, Narendra Modi ji. Thank you very much. Optical communications को उनकी presentation के लिए। और सभी उपस्थित गणमान्य अतिथि, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि आज मैं आप सभी के समक्ष ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूँ। मेरा नाम दीपक जैन है, मैं डीप प्लेस टेक्नोलॉजी का संस्थापक हूँ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। प्रकाश ही जीवन है और ज्ञान, संपर्क और प्रगति का आधार है। इसे हम दिन प्रतिदिन महसूस करते हैं जब मोडेम से निकली केबल हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जीवंत कर देती है। यह केबल कॉपर के तार नहीं बल्कि सिलिका ग्लास की बनी हुई ऑप्टिकल फाइबर होती है। प्रकाश की किरणें इस केबल से हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं।
आज 8 अरब किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर समुद्र तल की गहराइयों से होते हुए राजमार्गों को चीरते हुए मानवता की नसों को जोड़ने का काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल डेटा ट्रांसमिशन क्षमता है। एक ही फाइबर से हजारों फोन कॉल, वीडियो और डिजिटल सेवाएं एक साथ गुजरती हैं। ऑप्टिकल फाइबर के अलावा भी कई स्तंभ हैं जो आधुनिक संचार की रीढ़ हैं। फ्री स्पेस कम्युनिकेशन, वाईफाई और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एवं डेटा सेंटर। वर्तमान में 200 जेटाबाइट 200 बिलियन टेराबाइट डेटा इन डेटा सेंटर से होकर गुजरता है, जिसके लिए डेटा सेंटर सालाना 10,000 टेरावाट आवर की बिजली की खपत करते हैं। इस क्षेत्र में दुनिया भर के देश इस मांग को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए नए ऑप्टिकल फाइबर, एम्पलीफायर और डेटा सेंटर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इतिहास साक्षी है कि भारत के रमन, बोस और कपानी ने अतीत में प्रकाश के विज्ञान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब वो समय आ गया है कि हम उसी प्रकाश को आत्मनिर्भर भारत की ताकत और सुरक्षित कवच बनाएं। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार के सहयोग से कई स्टार्टअप, विभिन्न प्रकार के स्टार्टअप इस क्षेत्र में उभरे हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा वेलमनाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का, जो इस वाईफाई के क्षेत्र में बेहद अग्रिम कंपनी है। कंपनी ने 4G, 5G नेटवर्क के लिए उच्च गति और सुरक्षित ऑप्टिकल वायरलेस समाधान विकसित किए हैं। पारंपरिक वाईफाई से 10 गुना तेज और 10 Gbps तक की डेटा स्पीड देते हैं। इनके पेटेंट अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर और भारत में है। भारत का पहला 5G नेटवर्क इसी तकनीक पर आधारित है। साथ ही वेलमनी ने रक्षा बलों के लिए भी वाईफाई कम्युनिकेशन लिंक विकसित किए हैं। इसी दिशा में पिछले वर्ष हमने डीप्लेस टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इस कंपनी का मकसद भारत में ऑप्टिकल फाइबर्स और लेजर विकसित करना है। हम देश में पहली बार होलोकोर ऑप्टिकल फाइबर बना रहे हैं जो डेटा ट्रांसमिशन क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, और ऐसे फोटोनिक प्रोसेसर विकसित कर रहे हैं जो डेटा को फोटोन लेवल पर ही प्रोसेस कर सकेंगे ताकि ऊर्जा दक्षता नई ऊंचाइयां छू सके। हमने पिछले 1 वर्ष में लगभग 30 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी के लिए एकत्रित किया है और 2 पेटेंट भी हासिल किए हैं। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं नव वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। नव वायरलेस इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी गुजरात में है और उन्नत वाईफाई और FSO तकनीक के माध्यम से तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय वायरलेस कनेक्टिविटी में अग्रणी है। इनके समाधान रक्षा क्षेत्रों, गुजरात सरकार और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा अपनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यूजीलैंड में सफलतापूर्वक तैनाती की गई है। TEC प्रमाण, पेटेंटेड तकनीक और 82% स्वदेशी निर्माण के साथ हम आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर दीपा वेंकटेश IIT मद्रास से, जो आगे इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। We are proud to let you know that India has already established leadership in indigenous manufacturing of regular and specialty optical fibers. India is in fact one of the largest fiber manufacturers and exporters. India has also indigenous solutions for all optical network equipment, and we export them too. We have access networks and also in lab and test equipments. To meet the futuristic demands, there has been a concentrated effort to bring academia and industry together in the form of consortia projects. A classic example for this is the Advanced Optical Communication Testbed project led by IIT Madras, funded by the Department of Telecommunication. The project has established the world's first multi-core field testbed along with its full ecosystem with very close academia and industry partnership. We have increased the data density by 4 times in the same glass volume. This technology is going to play a transformative role in increasing the data density in data centers to reduce the cost per bit in subsea cables. The outcomes of the project in the last 2 years have been remarkable. The project has resulted in 17 prototypes. We have filed 18 patents, 1 trademark, 62 publications, and multiple trained manpower. All this progress, sir, has not been without challenges. One of the primary challenges that the startups face is infrastructure, which is quite expensive.
Establishing more such shared testbeds, fabrication and prototyping facilities would democratize innovation and provide lower barriers for entry for startups. Networks is leading the way to designing and building indigenous telecom solutions from India for the world. In collaboration with TCS and CDON, Tejas Networks presents India's first indigenous 4G 5G stack. Now India joins an elite group to be the 5th country in the world to own and operate an end-to-end telecom stack. Connecting the unconnected isn't just a mission, it's our responsibility. From remote villages to deep seas, Tejas delivers 4G, 5G in underserved regions, ensures coastal safety with SAT IoT, powering the world's largest asset tracking network for fishermen safety, built entirely with in-house SDR chipsets, and pioneers direct-to-mobile broadcast for disaster alerts, education, public messaging, and entertainment on latest communication devices, including feature phones, without relying on cellular networks. The world's first ultra-converged broadband access platform, part of a Swadeshi 4G 5G stack, acts as both RAN and backhaul. Deployed in 50+ countries, it bridges coverage gaps in remote areas by converging fixed and mobile wireless access. Software-defined and future-ready, TJ 1400 UCB evolves from 2G to 5G and beyond. Deploy once, upgradable for decades. We are now on our path to supporting India's mission to own 10% of global 6G patents through indigenous innovation and active participation in global standards. India is not just consuming technology, we are creating it. Tejas is accelerating India's emergence as a high-tech product nation. नागरिकों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज डिजिटल पेमेंट्स और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का ग्लोबल लीडर बन चुका है। डिजिटल इंडिया मिशन और जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल ने नागरिकों को डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़ा है। यूपीआई आज शहर से गांव तक हर आयु वर्ग की पहली पसंद है। दुनिया में होने वाले 50% डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज भारत में हो रहे हैं और ये हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत में बना, भारत में विकसित यूपीआई आज न सिर्फ भारत बल्कि 12 अन्य देशों में लाइव है। यूपीआई से औसतन हर महीने लगभग 2000 करोड़ ट्रांजैक्शन में 25 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। साथ में जैम ट्रिनिटी से पिछले 11 साल में 56 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। इसमें हमारी मातृ एवं महिला शक्ति के नाम 56% खाते हैं। जैम ट्रिनिटी से साल 2024-25 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इसी डिजिटल इकोसिस्टम का दुरुपयोग कर साइबर अपराधी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वर्ष 2024 में लगभग 23 लाख मामलों में 23,000 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड दर्ज हुआ है। हर एक केस की जांच टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रोएक्टिव डिजिटल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रॉड प्रिवेंशन ही प्रभावी उपाय है। साइबर फ्रॉड के विक्टिम हमारे नागरिक हैं, इसीलिए दूरसंचार विभाग ने सिटीजन एम्पावरमेंट हेतु संचार साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप शुरू किया है। पोर्टल सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और बेहद सरल और समावेशी है। पोर्टल पर अब तक 19 करोड़ से ज्यादा विजिटर और मोबाइल ऐप के 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड दर्ज है। पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय नागरिक बड़ी आसानी से फ्रॉड कॉल्स और एसएमएस को रिपोर्ट कर साइबर फ्रॉड के विरुद्ध इस लड़ाई में साइबर वॉरियर बन रहे हैं। नवंबर 2024 में आयोजित डीजीपी कॉन्फ्रेंस में दूरसंचार विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष साइबर फ्रॉड के विरुद्ध लड़ाई में समय ही सार थीम प्रस्तुत की थी। विभाग ने टेलीकॉम और फाइनेंस के बीच अपनी समन्वयता बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दर्शाई थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दूरसंचार विभाग ने AI बेस्ड फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI विकसित किया है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के अनुसार विभाग ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया है।
जिस पर सभी राज्यों की पुलिस, केंद्रीय जांच एजेंसियां, सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, 700 से अधिक बैंक और यूपीआई पेमेंट वॉलेट्स जुड़े हुए हैं। सभी स्टेक होल्डर्स और नागरिकों के द्वारा रिपोर्टेड मोबाइल नंबर्स का बहुआयामी विश्लेषण कर इन्हें 3 श्रेणियों वेरी हाई रिस्क और मीडियम रिस्क इन एफआरआई कैटेगरीज में बांटा जाता है और रियल टाइम सिक्योर एपीआई कनेक्टिविटी के जरिए यह डेटा बैंकिंग सेक्टर के साथ साझा किया जाता है। एफआरआई का उद्देश्य किसी भी फ्लैग मोबाइल नंबर पर किसी भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को होने से पहले ही रोकना या नागरिकों को अलर्ट देना है। एफआरआई माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र रुको, सोचो और एक्शन लो को राष्ट्रीय पटल पर टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्लीमेंट करने की एक पहल है। Honorable Prime Minister Sir, dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaste. I am Dr. Rajkumar Upadhyay, CEO, CDOT. It's a privilege and honor for me to be here today representing many organizations that are shaping the future of communication using the power of quantum technology. When we think of data, we usually think of zeros and one, but imagine something that can be both 0 and 1 at the same time. It is counterintuitive, right? Yet, that's how the nature really works, and that's what quantum science is all about. And quantum isn't new. We already use it every day. Our solar panels, our lasers, our MRI machines all depend on quantum physics. Even migratory birds use quantum effects to sense Earth's magnetic field and use it for navigation. Quantum science began over a century ago, and now in 2025, we look back how far we have come. Now we are entering what is called the second quantum revolution, and it's going to change everything, including the way computing happens. Quantum states can be in 0 and 1 at the same time, a phenomenon called superposition. Quantum computers use this property to process many possibilities in parallel to solve problems in minutes that would take otherwise for supercomputers thousands of years. These computers can help us discover new drugs, predict accurate weather patterns, and solve so many global challenges for the mankind. But there is a flip side. These quantum computers can break the security systems that protect our communications today. And that's where quantum communications comes to the rescue. There are two main ways to protect the data in the quantum age. I request him to kindly address the congregation. ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी जी, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, विदेशों से आए हमारे अतिथि, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित विभिन्न कॉलेजों से आए मेरे युवा साथी, देवी और सज्जनों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस खास एडिशन में मैं आप सभी अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बहुत सारे स्टार्टअप्स ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन को देखकर ये विश्वास गहरा होता है कि भारत का तकनीकी भविष्य सक्षम हाथों में है। मैं इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है।
सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। (2040) की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां
उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी है। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसमें अगर इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज को जोड़ दें तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रोजगार का ये नंबर कितना बड़ा बन जाता है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत ने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया है। ये देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। अब भारत दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। दुनिया के कुछ देशों को 1 लाख टावर की बात करते हैं तो भी उनको अजूबा लगता है। ये आंकड़े बहुत बड़े लगते हैं लोग। इसके कारण एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा लोग देश की डिजिटल मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। इसमें कई ऐसे इलाके थे जो रिमोट एरिया में थे, जो डिजिटल कनेक्टिविटी में पीछे छूट गए थे। अब ऐसे सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। साथियों, भारत के मेड इन इंडिया 4G स्टैक की एक और विशेषता है। हमारा 4G स्टैक एक्सपोर्ट रेडी भी है, यानी ये भारत की बिजनेस आउटरीच का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 के भारत यानी भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इसी कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था, और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाए, और हमने वही किया। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है। फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश में साइबर सिक्योरिटी को भी
उतनी ही प्राथमिकता दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ कानून सख्त किए गए हैं और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को भी बेहतर किया गया है। इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स दोनों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट हमारे पास है। दूसरा सबसे बड़ा 5G मार्केट यहाँ है और मार्केट के साथ ही हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। साथियों, आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। पर यूजर डेटा कंजप्शन में हम दुनिया के अग्रिम देशों में आते हैं। इसका अर्थ है कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी अब कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। ये भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। साथियों, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत के डिजिटल भविष्य के लिए आपका स्पष्ट दृष्टिकोण, आपका मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव, इसकी शक्ति, इसकी ताकत हम सभी भारतवासियों को देने के लिए धन्यवाद। और आपका संदेश न केवल उद्योगों में बल्कि राष्ट्रों में और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा, जो इस विश्वास को मानते हैं कि कनेक्टिविटी जीवन को रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।